आज इस वीडियो में कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं डोज के बारे में और कैसे एनेस्थीसिया मशीन को चेक करते हैं और एक सर्कुलेटरी नर्सिंग का क्या काम होता Resuscitation है। and cardiac support. Adrenaline, epinephrine, for anaphylaxis, cardiac arrest, or severe hypotension. Atropine, for bradycardia or as an anticholinergic premedication. Amiodarone, for ventricular arrhythmias. Lidocaine, for ventricular arrhythmias or local anesthesia. Dopamine, dobutamine, for cardiac support in hypotension or heart failure. Vasopressin, for refractory shock or cardiac arrest. Calcium gluconate, chloride, for hypocalcemia or calcium channel blocker overdose. Sodium bicarbonate, for severe metabolic acidosis. Resuscitation and cardiac support. Dose: adrenaline, epinephrine. Cardiac arrest: 1 mg IV, intraosseous, every 3 to 5 minutes. Anaphylaxis: 0.3-0.5 mg IM every 5 to 15 minutes as needed. Atropine, bradycardia: 0.5 mg IV every 3 to 5 minutes, maximum dose 3 mg. Amiodarone, cardiac arrest, shockable rhythm, 300 mg IV bolus, followed by 150 mg if needed. Ventricular arrhythmias, 150 mg IV over 10 minutes, then infusion at 1 mg per minute for 6 hours. Lidocaine, cardiac arrest, alternative to amiodarone, 1 to 1.5 mg per kilogram IV, repeated 0.5 minus 0.75 mg per kilogram every 5 to 10 minutes, max 3 mg per kilogram. Dopamine, hypotension, shock, 2 to 20 mcg per kilogram per minute IV infusion, titrate to effect. Dobutamine, cardiac support, 2 to 20 mcg per kilogram per minute IV infusion, titrate to effect. Vasopressin, cardiac arrest, 40 units IV single dose, alternative to first or second adrenaline dose. Shock, 0.01 minus 0.04 units per minute IV infusion. Calcium gluconate, chloride. Hypocalcemia, 1 to 2 gram IV over 10 to 20 minutes. Calcium chloride is more potent than calcium gluconate. Sodium bicarbonate, severe metabolic acidosis, 1 milliculant per kilogram IV bolus, followed by 0.5 milliculant per kilogram every 10 minutes as needed. Antihypertensives, nitroglycerin, for acute hypertension or angina. Esmolol, for perioperative hypertension or tachycardia. Labetalol, for acute hypertensive crises. Hydralazine, for acute hypertension. Antihypertensives dose: nitroglycerin, hypertensive emergency, 5 microgram per minute IV infusion, increase by 5 microgram per minute every 5 minutes, max 200 microgram per minute. Esmolol, hypertension, tachycardia, 500 microgram per kilogram IV bolus over 1 minute, followed by infusion at 50 to 200 microgram per kilogram per minute. Labetalol, acute hypertension, 10 to 20 milligrams IV bolus, repeat every 10 minutes, max 300 milligrams, or continuous infusion at 0.5 to 2 mg per minute. Hydralazine, hypertension, 5 to 10 milligrams IV every 4 to 6 hours as needed. Bronchodilators, salbutamol, albuterol, for bronchospasm. Ipratropium bromide, for acute bronchospasm. Aminophylline, for severe asthma or bronchospasm. Bronchodilators dose: salbutamol, albuterol. Bronchospasm, 2.5 mg nebulized every 20 minutes for 3 doses, then every 1 to 4 hours as needed. Ipratropium bromide, bronchospasm, 0.5 mg nebulized every 20 minutes for 3 doses. Aminophylline, acute asthma, 5 mg per kilogram IV over 20 to 30 minutes, then 0.5 to 0.9 mg per kilogram per hour infusion. Anaphylaxis and allergy management, adrenaline, epinephrine,
first-line treatment for anaphylaxis. Hydrocortisone, for severe allergic reactions or asthma. Chlorpheniramine, promethazine, for allergic reactions. Diphenhydramine, for allergic reactions. Anaphylaxis and allergy management dose. Adrenaline, epinephrine. Anaphylaxis, 0.3 to 0.5 milligrams IM every 5 to 15 minutes as needed. Hydrocortisone. Allergy, asthma, 100 to 500 milligrams IV every 6 hours as needed. Chlorpheniramine. Allergic reactions, 10 to 20 milligrams IM, IV every 4 to 6 hours. Diphenhydramine. Allergic reactions, 25 to 50 milligrams IV, IM every 4 to 6 hours. 5. Analgesics and anesthetics. Phenytoin, short-acting opioid for pain relief. Morphine, for severe pain management. Ketamine, for induction, sedation, or analgesia. Midazolam, for sedation or anesthesia induction. Propofol, for anesthesia induction or sedation. Analgesics and anesthetics. Dose. Phenytoin. Pain, 25 to 100 microgram IV bolus. Repeat as needed, max, 1 microgram per kilogram per hour infusion. Morphine. Pain, 2 to 10 milligrams IV. Repeat every 2 to 4 hours as needed. Ketamine. Induction, 1 to 2 mg per kilogram IV bolus. Sedation, 0.5 to 1 milligram per kilogram IV bolus. Midazolam. Sedation, 0.02 to 0.1 milligrams per kilogram IV. Repeat as needed. Propofol. Induction, 1 to 2.5 milligrams per kilogram IV bolus. Sedation, 25 to 75 mcg per kilogram per minute IV infusion. Antiemetics. Ondansetron, for nausea and vomiting. Metoclopramide, for nausea or delayed gastric emptying. Ondansetron. Nausea, 4 to 8 milligrams IV every 8 hours as needed. Metoclopramide. Nausea, 10 milligrams IV every 6 to 8 hours as needed. Hypoglycemic and hyperglycemic management. 50% dextrose, for hypoglycemia. Insulin, for hyperglycemia or diabetic ketoacidosis. Hypoglycemic and hyperglycemic management dose. 50% dextrose. Hypoglycemia, 25 to 50 milliliter IV bolus. Insulin. Hyperglycemia, 0.1 units per kilogram IV bolus, followed by 0.1 units per kilogram per hour infusion. Electrolyte and fluid management. Potassium chloride, for hyperkalemia. Magnesium sulfate, for tossades the points or eclampsia. Electrolyte and fluid management. Dose. Potassium chloride. Hyperkalemia, 10 to 20 milliculant IV per hour, maximum 40 milliculant per hour with ECG monitoring. Magnesium sulfate. Tossades the points, 1 to 2 gram IV over 5 to 20 minutes. Anticoagulants and coagulation management. Heparin, for thromboembolism prevention or treatment. Protamine, for heparin reversal. Tranexamic acid, for bleeding control. Vitamin K, for warfarin reversal. Anticoagulants and coagulation management. Heparin, thromboembolism, 5000 units IV bolus, then 1000 units per hour infusion. Protamine, heparin reversal, 1 mg IV per 100 units of heparin. Tranexamic acid, bleeding control, 1 gram IV over 10 minutes, then 1 gram IV infusion over 8 hours. Vitamin K, warfarin reversal, 5 to 10 milligrams IV. ऑपरेशन थिएटर में सुरक्षा संबंधी सावधानियां। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन थिएटर मरीज के साथ साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षित हो। दुर्घटनाएं, एनेस्थेटिक गैसों से प्रदूषण, नुकीले औजारों का अनुचित तरीके से निपटान जैसे कई खतरे हैं। अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो इन खतरों से बचा जा सकता है। सुरक्षा संबंधी सावधानियां। दुर्घटना की रोकथाम, आग से बचाव, औरती और उपकरणों की उचित सफाई,
प्रभावी स्टेरिलाइजेशन के तरीके, सख्त एसेप्टिक तकनीकों का पालन, मरीज की सही पहचान, उपयोग की गई सामग्री का उचित तरीके से निपटान, स्वैप, सुई और उपकरणों की संख्या की जांच, दुर्घटनाओं से बचाव, सुनिश्चित करें कि फिसलने से बचने के लिए फर्श सूखा रखा जाए। त्वचा को चोट से बचाने के लिए लोशन और रसायनों को सावधानी से संभालें और लोशन के छींटे आंखों में जाने से बचें। कटने और चोट लगने से बचाने के लिए सुई, ब्लेड और अन्य नुकीले औजारों को प्लास्टिक कवर में पैक करने के बाद सावधानी से फेंकें। सभी उपकरणों को पर्याप्त रूप से और काम करने की स्थिति में रखें। आग से बचाव, ऑपरेशन थिएटर में स्थैतिक बिजली एक खतरा है, जब वहां साइक्लोप्रोपेन और ईथर जैसे ज्वलनशील एनेस्थेटिक होते हैं। सावधानियां, सभी चलने वाले फर्नीचर और उपकरणों में एंटीस्टैटिक पहिए होने चाहिए। एंटीस्टैटिक जूते पहने। एंटीस्टैटिक किस्म की सभी रबर शीट का उपयोग करें। थिएटर के व्यक्तिगत और ड्रेपिंग सीटों के लिए ओवरगारमेंट्स तैयार करने के लिए हम केवल सूती सामग्री का उपयोग करते हैं, नायलॉन या ऊनी सामग्री से बचें। Safety precautions in Operation Theatre. It is very important that the operation theatre is safe for the patient as well as for the staff working. There are many hazards like accidents, pollution from anesthetic gases, improper disposal of sharp instruments. These hazards can be avoided if certain precautions are taken. Safety precautions. Prevention of accident. Prevention of fire. Proper cleanliness of OT and equipment. Effective sterilization methods. Following strict aseptic techniques. Proper identification of the patient. Proper disposal of used materials. Checking swabs, needles, and instrument count. Prevention of accidents. Ensure that the floor is kept dry to prevent slipping. Handle lotions and chemicals carefully to prevent injury to the skin and avoid splashing of lotions into the eye. Use needles, blades, and other sharp instruments carefully after packing in a plastic cover to prevent cut and injuries. Maintain all the equipment adequately and in working order. Prevention of fire. Static electricity is a hazard in the operation theatre when there is flammable anesthetic such as cyclopropane and ether. Precautions. All movable furniture and equipment should have anti-static wheels. Wear anti-static footwear. Use all rubber sheets of anti-static variety. We use only cotton material for preparation of overgarments for theatre personnel and draping seats. Avoid nylon or woolen material. ओटी के अंदर आते ही सबसे पहले टेक्नीशियन को क्या क्या तैयारी करनी होती है आज उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एनेस्थीसिया मशीन को चेक करते हैं। पावर सप्लाई को हमने ऑन कर लिया। उसके बाद जो हमारी ड्रैगर की फेबियस प्लस मशीन है उसके पीछे इसका ऑन ऑफ पॉइंट होता है, हमें इसको प्रेस करना होता है, यहाँ से मशीन स्टार्ट होती है। उसके बाद में हमें मशीन के डिस्प्ले को फॉलो करना है क्योंकि यह फुली ऑटोमेटिक मशीन है जो खुद से अपने आप को चेक करती है। सिर्फ हमें इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और ये मशीन सारा काम अपने आप करेगी। देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है रन सिस्टम टेस्ट। ये मशीन ने अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेक कर लिया। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कैलिब्रेशन फ्लो सेंसर। जो कैलिब्रेशन फ्लो सेंसर है वो ब्रीथिंग सर्किट का है, ये कंप्लीट है ब्रीथिंग सर्किट जिसके थ्रू आपके पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है। तो ये मशीन बोल रही है कि सबसे पहले इस सर्किट को आपको चेक करना है कि आपका सर्किट मशीन से लेके बाहर तक कंप्लीट ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले ये मशीन हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देगी और उसको हमें फॉलो करना है। हमें इस बटन को प्रेस करना है तो ये मशीन हमें दिखाती है कि क्लोज ऑल फ्रेश गैस कंट्रोल वाल्व, यानी कि जितनी भी हमारी फ्रेश गैसेज हैं 1 2 3 ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, कोई भी गैस खुली नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहती है हमको रिमूव एक्सपायरेटरी हॉज फ्रॉम ब्रीथिंग सिस्टम, यानी कि मशीन ने बोला है कि जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम का एक्सपायरेटरी हॉज है, यानी कि ये मशीन के अंदर से आता है इंस्पायरेटरी हॉज। जब पेशेंट CO2 छोड़ता है तो ये है एक्सपायरेटरी हॉज जो कनेक्ट होता है सोडा लाइम के साथ नीचे। तो हमारी CO2 को सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसने हमको बोला है कि आपको रिमूव करना है एक्सपायरेटरी हॉज फ्रॉम ब्रीथिंग सिस्टम। इसके बाद हमें इसके इस रोटेटरी नॉब को प्रेस करना है। मशीन कैरियर टू स्टार्ट फ्लो सेंसर कैलिब्रेशन प्रेस रोटेटरी नॉब। हमने इसको क्लिक कर दिया तो अब देखिए मशीन यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद को कैलिब्रेट कर रही है।
ये थोड़ा सा समय लेती है कैलिब्रेट होने में। अगर इसमें कोई एरर होता है तो ये आपको डिस्प्ले पे दिखाता भी है कि मशीन के अंदर कोई एरर है। और इससे पहले ये देखिए यहाँ पे कल हमने चेक की तो 29 की डेट दिखा रही है। इसके बाद ये डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर फ्लो कैलिब्रेशन कंप्लीट, रिकनेक्ट एक्सपायरेटरी हॉर्स, आपको सिर्फ मशीन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और उसके बाद आपको इसको रिकनेक्ट कर देना है। इसके बाद हमें सेकंड पॉइंट्स पे आना है। ये बोल रहा है कैलिब्रेट O2 सेंसर। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है रिमूव O2 सेंसर एंड एक्सपोज टू रूम एयर फॉर 2 मिनट्स। इसको हम निकालेंगे बाहर। ये हमारा O2 सेंसर है, इसको हम बाहर निकाल के रख देंगे। मशीन कह रही है इसको 2 मिनट के लिए रूम एयर पे रखना है, बट अगर इसमें कोई मॉइस्चर है इसके लिए हम इसे O2 बटन से फ्लश कर देंगे इस तरह से। उसके बाद टू स्टार्ट O2 कैलिब्रेशन प्रेस रोटेटरी नॉब, हमें फिर रोटेटरी नॉब को प्रेस कर देना है, जिसके साथ ये क्या है, कैलिब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। O2 कैलिब्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि जो हमारे डिस्प्ले पर O2 की चार्टिंग वगैरह जो भी कुछ आता है ना मॉनिटर्स के थ्रू, जो मशीन्स के थ्रू जितनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसका सब कुछ हमें डाटा दिखाई देता है। तो ये देखिए इसने क्या बोला है, O2 सेंसर रिकनेक्ट, ये कैलिब्रेट हो गया है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि मशीन का लीक सिस्टम हमें चेक करना है। तो जो ड्रैगर की फेबियस प्लस मशीन है उसमें पहले वेंटिलेटर खुद को प्रिपेयर करता है। इसमें कुछ डिस्कशन पॉइंट्स आते हैं जो आपको देखने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्लोज ऑल फ्रेश गैस कंट्रोल वाल्व, यानी कि सबसे पहले आपको सारी गैसेस बंद करके रखनी है। सेकंड कहता है प्लीज वाई पीस प्लेस ऑन प्लग लोकेट ऑन बैग माउंट, यानी कि वाई पीस आपका जो ब्रीथिंग सर्किट होता है उसका एंड वाला पार्ट होता है जहाँ पे आप HME फिल्टर्स कनेक्ट करके रखते हो। ये आपका HME फिल्टर है और ये है आपका वाई पॉइंट। तो मशीन में एक होल्डिंग पॉइंट दिया होता है इस वाई को लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको इसमें कनेक्ट करेंगे क्योंकि उसने हमें बोला है प्लीज वाई पीस ऑन प्लग लोकेट ऑन बैग माउंट। या तो बैग माउंट पे कनेक्ट कर दीजिए इस वाई पीस को, तब भी हम इसे चेक कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए तब भी हम इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद सील सिंपल लाइन, हाँ इसके बाद हमें इसके APL वॉल को क्लोज करना है 70 तक ले जाके ताकि लीक ना हो। उसके बाद मशीन के प्रेशर को 4 to 5, इसको APL वॉल को 40 to 50 के बीच में बंद करना है और O2 फ्लश बटन को दबा करके हमें इसका प्रेशर 15 से 30 के बीच में लेके जाना है। ये हमारा O2 का फ्लश बटन है, आप इसको दबाइए और मैं इसका प्रेशर 15 के बाद छोड़ देता हूँ। फिर देखिए ये मशीन अब खुद को ऑटोमेटिक कैलिब्रेट करेगी। ये मैं आपको बैक पे करके भी दिखाता हूँ अभी कि बैक पे कैसे होता है। ये खुद को टेस्ट करने में थोड़ा समय लगाता है क्योंकि ये मैनुअली वेंटिलेशन है, तो हम इसमें मैनुअली कैलिब्रेशन है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आजकल मशीन बहुत एडवांस हो चुकी हैं और वो अपने आप को खुद ही कैलिब्रेट करती है। मैनुअली हमेशा मशीन को कैलिब्रेट जरूर करना चाहिए क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में या किसी भी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप मैनुअली किसी चीज़ को चेक करते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अभी हम मैनुअली भी चेक करेंगे, मैनुअली कैसे हैंडल करते हैं। मैनुअली चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा सीवोफ्लोरिन का वेपोराइजर है। इसी तरह से यहाँ पे नाइट्रस एयर O2 इन सब के, ये देखिए अब इसका वेंटिलेटर जो है खुद को चेक कर रहा है और यहाँ पे जो है बैग लटका हुआ है, ये इस समय इसको पेशेंट के लंग्स समझकर काम कर रहा है। और ये देखिए मशीन खुद को सेल्फ कैलिब्रेट कर रही है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन अब हम इसको मैनुअली वेंटिलेट करेंगे। देखिए अब आपकी मशीन को मशीन ने पास कर दिया है यहाँ पे, और इसको आप बैग जाके दोबारा से मैनुअली चेक कर सकते हो वो कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे आप जब किसी भी पेशेंट्स के लिए ट्यूब डालने के बाद जब ऑक्सीजन सप्लाई करते हो, आप वेंटिलेटर का यूज करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वाई निकालना है। इसके अंदर आपको अपना जो रिजर्वायर बैग है उसको कनेक्ट कर देना है। रिजर्वायर बैग इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा आपके मशीन के साथ, P पॉइंट के साथ आगे। और यहाँ पे जिस तरह से आप अपने पेशेंट को वेंटिलेटर चलाते हो इसको आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए
तो अब ये एज इट इज ऐसे काम करेगा जैसे आपके पेशेंट को, ये देखिए, कंप्रेस होने लगा, यहाँ पे वेंटिलेटर चलने लगा, देखिए। तो ये मैनुअली आप मशीन को जरूर चेक करें ताकि कुछ भी लीक हो तो आपको पता लगे। इसके बाद आप इसको मेन लाइन पे डालिए, काम करके ये आपका मशीन, और यहाँ पे आपकी जो डेट है वो चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं, मशीन के पीछे योक असेंबली सिस्टम जो होता है, जहाँ पे आपके सिलेंडर्स लगे होते हैं नाइट्रस और ऑक्सीजन के। ये आपका कंप्लीट योक असेंबली सिस्टम होता है। इसके अंदर बोर्डॉक्सील और पिन इंडेक्स सिस्टम लगा होता है, जो यहाँ पे रॉन्ग फिटिंग सिलेंडर्स को रोकते हैं, ताकि आप ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस और नाइट्रस की जगह ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लगा दें। ये सेंट्रल सप्लाई है हमारी, जो DISS सेफ्टी सिस्टम के साथ, डायमीटर सेफ्टी इंडेक्स सिस्टम के साथ कनेक्ट रहती है। इसमें भी आप कोई रॉन्ग फिटिंग सेंट्रल सप्लाई का पाइप कनेक्ट नहीं कर सकते। ये CO2 का ग्राफ दिखाने के लिए मॉनिटर पे लगा हुआ है, अटैचमेंट है। देखिए, इस तरह से आपको अपनी डेली रूटीन में मशीन को चेक करना चाहिए। ये हमारा मॉनिटर है, ड्रैगर का ही मॉनिटर कनेक्ट है हमारी मशीन के साथ, विस्टा 120S। इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी इंट्यूबेशन ट्रॉली के अंदर हम रोज क्या क्या चेक करते हैं। मैं सबसे पहले आके अपनी इंट्यूबेशन ट्रॉली हमेशा चेक करता हूँ, और अपनी इंट्यूबेशन ट्रॉली हमेशा मैं कवर्ड रखता हूँ। देखिए, मेरी इंट्यूबेशन ट्रॉली के ऊपर आप देख रहे हैं आई जेल है, एनेस्थीसिया फेस मास्क हैं, ETO वाले भी हैं, लैरिंगोस्कोप्स के ब्लेड्स भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, गुडल एयरवुड, नेजल एयरवे, स्टिलेट, फ्लेक्सोमेट्री ट्यूब में डालने के लिए, टंग डिप्रेसर। इसके बाद मेरे पास मैगिल फोर्सेप्स भी है, ये देख लीजिए, मैगिल फोर्सेप्स रखी हुई है मेरे पास। इसके बाद ट्रॉली पे आपकी मशीन पे मैकॉय का लैरिंगोस्कोप ब्लेड भी होना चाहिए, क्योंकि जब आपको कोई डिफिकल्ट इंटूबेशन करना होता है तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आपके पास बूजी होनी चाहिए, बूजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जो आपके रोजाना डेली रूटीन वर्क में काम आती है। मैं हमेशा अपनी जो ट्यूब्स होती हैं उनको मॉनिटर के पास रखता हूँ कि कब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ जाए, और इंटूबेशन ट्रॉली पे भी मैं ट्यूब्स अपने हमेशा रखता हूँ। The role of circulating nurse. The circulating nurse is the one who helps the scrub nurse free to move about to assist all other personnel before, during, and after each surgery for proper and efficient management of OT. The role of the circulating nurse can be described as before the surgery starts, during the surgery, before the end of the surgery, and the completion of the surgery. The role of the circulating nurse before surgery: check that the theater is cleaned, suction, diathermy equipments and lights are in working order. Ensure that the temperature and humidity controls are correctly set. Prepare necessary stock and equipments, example swab, specimen, jar, sterile water, sterile gown and gloves for the team. Assist in tying gowns for the surgeons, scrub nurse and anesthesiologists, etc. Open sterile instruments and bowel packs and other necessary equipments for the scrub nurses. Assist with swab and instrument, count and record in the chart. Receive the patient, check the patient identity with the name, band, case paper and the operating list. Assist in positioning of the patient on the operation table. Check that the jelly from is kept neat and tidy for surgery. Role of the circulating nurse during surgery: ensure that all theater doors remain closed. Check that OT is kept tidy during the surgery. Anticipated the requirement of the team and act accordingly. Place swab collecting bowels continuously for scrub nurses. Find the bowels with the sterile water is required. Connected suction and diathermy leads.
maintains accurate record of extra swab instrument needles and suture materials using during surgery, detected and report any break in the aseptic technique, clean forehead and spectacles as required for the surgeons of the scrub nurse. ऑपरेशन थिएटर में सर्कुलेटिंग नर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल टीम के साथ मिलकर काम करती हैं और सर्जरी के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करती हैं। उनकी विस्तृत जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं। 1. सर्जरी से पहले तैयारी और सेटअप। सर्जरी शुरू होने से पहले सर्कुलेटिंग नर्स ऑपरेशन थिएटर में आवश्यक उपकरणों, दवाओं और सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। आवश्यक उपकरणों की जांच करती है कि वे सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। ऑपरेशन थिएटर का माहौल संक्रमण रहित बनाए रखने के लिए सफाई और संक्रमण नियंत्रण के प्रोटोकॉल का पालन करती हैं। मरीज की तैयारी। मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लाने से पहले उनकी जानकारी, जैसे नाम, सर्जरी का प्रकार, एलर्जी आदि की पुष्टि करती हैं। 2. सर्जरी के दौरान इंट्रा ऑपरेटिव फेज। सर्जिकल टीम को सहायता। सर्जरी के दौरान सर्कुलेटिंग नर्स सर्जिकल टीम को उपकरण और सामग्री प्रदान करती हैं, जो ऑपरेशन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। सर्जन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और स्क्रब नर्स की जरूरतों को पूरा करना। उपयोग किए गए उपकरणों की गिनती और उनके सही स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। संक्रमण नियंत्रण उपाय। ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण को रोकने के लिए सर्जिकल एसेप्सिस बनाए रखना। मरीज और उपकरणों की सही स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया का पालन। संचार का प्रबंधन। ऑपरेशन थिएटर के बाहर के विभागों, जैसे ब्लड बैंक, पैथोलॉजी लैब, से संपर्क बनाए रखना। आपातकालीन स्थिति में सहायता। किसी आपात स्थिति में सही निर्णय लेने और उपकरण उपलब्ध कराने में सर्जिकल टीम की सहायता करना। 3. सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव फेज। मरीज की देखभाल। सर्जरी समाप्त होने के बाद मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी एरिया (PACU) तक ले जाने में मदद करना। दस्तावेजीकरण। सर्जरी के दौरान उपयोग किए गए उपकरणों, दवाओं और प्रक्रियाओं का सही रिकॉर्ड रखना। उपयोग किए गए सर्जिकल स्पॉन्ज, सुइयों और उपकरणों की गिनती करना। थिएटर की सफाई। सर्जरी के बाद ऑपरेशन थिएटर को साफ और व्यवस्थित करना ताकि अगली सर्जरी के लिए तैयारी की जा सके। 4. अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं। सुरक्षा और देखभाल। मरीज की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, जैसे कि ऑपरेशन टेबल पर सही पोजीशन देना और किसी भी प्रकार की चोट को रोकना। शिक्षा और प्रशिक्षण। नए नर्सिंग स्टाफ या इंटर्न को प्रशिक्षण देना और उन्हें ऑपरेशन थिएटर के प्रोटोकॉल सिखाना। समस्या समाधान। सर्जरी के दौरान आने वाली किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करना। विशेषताएं और कौशल की आवश्यकता। संगठन क्षमता। ऑपरेशन थिएटर को व्यवस्थित रखने और सभी उपकरणों और सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की क्षमता। संचार कौशल। सर्जिकल टीम और अन्य विभागों के साथ प्रभावी संवाद। धैर्य और सतर्कता। किसी भी आपात स्थिति में धैर्यपूर्वक काम करने और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता। तकनीकी ज्ञान। सर्जिकल उपकरणों और प्रक्रियाओं का गहन ज्ञान। सर्कुलेटिंग नर्स ऑपरेशन थिएटर की रीढ़ होती है। उनकी भूमिका ऑपरेशन थिएटर के सुचारू संचालन, मरीज की सुरक्षा और सर्जिकल टीम के समर्थन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।